Okay. Last class we have started yellow fever and there was some portion remaining, right? In yellow fever. So we will continue with that. Just give me 2 minutes. Okay. In this, we have completed, I guess, till precaution or let's see. Yeah, prevention and control. Till here, we have completed in last class. Am I correct? यहाँ तक हो गया था शायद. Students, यहाँ तक हो गया था ना? Okay, so we will start from here. So in prevention and control, the vaccination 7D is prescribed. Okay, if a person has taken this vaccination, that is 17D vaccination, then he is protected for around 35 years. उसका immunity कितने time तक develop हो जाता है? 35 years के लिए. और मतलब जैसे आज vaccine लिया है तो the day 7th day of the vaccination, like if I have taken vaccination now, then my immunity will develop after 7 days. ठीक है, 1 week के बाद या 7 days के बाद immunity develop हो जाती है and वो last करती है till 35 years. और सॉरी, एंड जो ये वैक्सीनेशन है ये सबक्यूटेनियसली दिया जाता है 0.5 ml और ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड वैक्सीनेशन है. ठीक है, नाउ वी विल सी द प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन है. अनदर वैक्सीनेशन इज आल्सो देयर. जो दूसरा वैक्सीन है वो है YF वैक्स, licensed in the United States. This vaccination is licensed vaccination in United States, but it has announced that YF vax will be unavailable from mid 2017 to mid 2018 because of delayed in the production process. But ये जो YF वैक्स है, ये वैक्स कहाँ पे लाइसेंस्ड वैक्सीनेशन है? यूनाइटेड स्टेट के लिए. और ये वैक्सीनेशन इन बिटवीन 2017 to 18 अनअवेलेबल हो गई थी बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, which is not very important to learn. Just you have to learn that this another alternative for vaccination other than 17D is YF vax. Next is Stemmerel vaccination. It is a registered and distributed in all over 70 countries. This one is a registered and this is distributed in 70 countries. However, it is considered investigational in US as it is not a US licensed product. मतलब ये जो वैक्सीन है ये एक और वैक्सीन है जो कि अराउंड 70 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया हुआ है. ठीक है, और ये 70 कंट्रीज में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब यूज होता है इसका, बट यूएस में नहीं है क्योंकि उन लोगों ने इसको लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया. नेक्स्ट इज which is very important now from here is nursing management. So for that first we will see nursing diagnosis. So the first nursing diagnosis for yellow fever will be impaired thermoregulatory pattern related to disease condition as evidenced by monitoring vital sign. है ना, उसका क्या है? थर्मो रेगुलेशन नहीं है, मतलब उसका बॉडी टेम्परेचर में रेगुलेशन नहीं है. और यू कैन राइट डाउन हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय मॉनिटरिंग वाइटल साइन, ये भी लिख सकते हैं आप. नेक्स्ट इज एक्यूट पेन रिलेटेड टू मसल स्पाज्म एज एविडेंस बाय पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन, और द पेशेंट इज
थ्रू द पेशेंट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। मतलब क्या है, पेन है, मसल स्पाज्म की वजह से जॉइंट्स पेन, बॉडी पेन, मसल्स पेन रहेगा, ठीक है पेशेंट को। देन इज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट related to excess vomiting as evidenced by input output chart. Okay, fluid volume deficit is also there, और वो हम मॉनिटर करेंगे। हमको कहाँ से उसका एविडेंस मिला? थ्रू इनपुट आउटपुट चार्ट। fatigue related to lethargy as evidenced by observing the patient. Patient is found very fatigued, और कैसे पता चला हमको? By observing the patient. Disturbed sleeping pattern related to body pain as evidenced by observing the patient. So now we will see one by one intervention for each nursing diagnosis. Impaired thermoregulatory pattern related to disease condition as evidenced by monitoring vital sign. So इसका या फिर आप impaired लिख सकते हो या hyperthermia लिख सकते हो, ठीक है। impaired thermoregulatory pattern लिख सकते हो या फिर hypothermia related to ऐसे भी लिख सकते हो। So इस नर्सिंग डायग्नोसिस में हमारा गोल क्या होगा? टू मेंटेन द थर्मोरेगुलेटरी पैटर्न और डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, और कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर टिल नॉर्मलाइजिंग। तो यहाँ पे गोल है टू मेंटेन द थर्मोरेगुलेटरी पैटर्न, एंड इसमें इंटरवेंशन में हम फर्स्ट क्या करेंगे? प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट विच वुड बी सुपाइन पोजीशन। सेकेंड विज बी पेशेंट का हम वाइटल साइन चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है, ताकि हमको एक बेसलाइन डेटा मिल सके। देन द थर्ड विल बी to provide antipyretics to the patient as prescribed by the doctors to reduce the temperature. Okay, और पैरास्टामोल कितना दे सकते हैं? 500 mg। तो हम एंटीपायरेटिक्स देंगे, बट दैट शुड बी गिवन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही हम एंटीपायरेटिक्स देंगे, और जो रिकमेंडेड एंटीपायरेटिक मेडिकेशन है इस डिजीज कंडीशन के लिए, दैट इज पैरास्टामोल 500 mg। नेक्स्ट इज एक्यूट पेन रिलेटेड टू मसल स्पाज्म, ठीक है। पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ एक्यूट पेन विच वुड बी रिलेटेड टू मसल स्पाज्म, क्योंकि मसल्स में अकड़न हो जाती है, उसकी वजह से पेन के लिए कंप्लेन करेगा। इसका गोल क्या होगा? टू रिलीव द पेन ऑफ द पेशेंट। ओके, सो फर्स्ट विल बी उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है। देन डाइवर्शनल थेरेपी भी दे सकते हैं हम पेशेंट को, लाइक सॉफ्ट म्यूजिक, ओके, जिससे कि पेशेंट का माइंड डाइवर्ट हो, वो पेन में अपने पेन में कंसंट्रेट ना करे। एंटी एनाल्जेसिक्स देंगे सॉरी, एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करना है पेशेंट को, जो कि अगेन वुड बी प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम एनाल्जेसिक्स देंगे। तो इसमें हम दे सकते हैं डाइक्लोफेनेक दे सकते हैं, ठीक है, पेशेंट को। नेक्स्ट nursing diagnosis would be fluid volume deficit related to excess vomiting as evidenced by monitoring input and output chart. तो इसमें हम क्या करेंगे कि अभी इसका गोल क्या होगा? टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम लेवल ऑफ द पेशेंट, और टू मेंटेन द फ्लूइड वॉल्यूम लेवल और इलेक्ट्रोलाइट लेवल। नेक्स्ट इंटरवेंशन में क्या होगा? इनपुट आउटपुट चार्ट को एक्सेस करते रहना है आपको, तभी आपको क्या मिलेगा? इसका फ्लूइड वॉल्यूम का एग्जैक्ट कंडीशन डेटा बेसलाइन प्रोवाइड होता रहेगा आपको, है ना। पेशेंट को एजुकेट करना है कि दे हैव टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेना है उनको प्लेंटी। एंड नेक्स्ट विल बी to administer IV fluid to the patient, ठीक है। आरएल रिंगर लेक्टेट दे सकते हैं, नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, ताकि उसका फ्लूइड वॉल्यूम लेवल मेंटेन रहे। फर्स्ट स्टार्टिंग में हम कोशिश करेंगे कि पेशेंट ओरली ही फ्लूइड ले, कि उसका जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट ना हो, इस कंडीशन पे ना जाए। बट अगर आपको लग रहा है कि नो, you have to recommend, or as per the prescription of the doctor, if the doctor find out that the patient condition is worsening with every moment of time, then the doctor will recommend IV fluid. Okay, IV fluid में RL दे सकते हैं, NS दे सकते हैं। अब इसके कुछ होम रेमेडीज भी है, ठीक है। तो होम रेमेडीज में हम क्या कर सकते हैं? देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर येलो फीवर। देखो, येलो फीवर का कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है,
बेसिकली क्या है, ये भी वायरल कंडीशन है। वायरल कंडीशन का एग्जैक्ट ट्रीटमेंट मिलना इज सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट, कुछ हद तक डिफिकल्ट रहता है। तो जितने भी वायरल फीवर्स होते हैं या वायरल कंडीशन होते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसा होता है, सिम्टोमेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। सिम्टम्स जो भी अराइज होंगे उसके बेसिस में ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे इसमें क्या हो रहा है, मसल स्पाज्म हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स दे दिया, है ना। फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक्स दे दिया। पेन है बॉडी में तो आप वही एनाल्जेसिक्स दे रहे हो। तो इट इज लाइक दैट। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो रहा है तो पेशेंट को प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करने के लिए बोल रहे हो, एंड अलोंग विद इट अगर आपको फाइंड आउट होता है कि नहीं पेशेंट की कंडीशन फिर भी स्टेबल नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन करवाना शुरू कर देंगे। तो हम क्या है, कुछ हद तक इससे बच सकते हैं होम रेमेडीज के थ्रू या प्रिवेंशन के थ्रू। हम कुछ हद तक जो वायरल कंडीशंस रहती हैं उनसे बच सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज वी कैन गिव प्लेंटी ऑफ वाटर टू पेशेंट टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। तो होम रेमेडीज में ये भी आ सकता है कि जैसे ही पता चलता है या जैसे ही पेशेंट को ये हो रहा है कि फीवर आ रहा है, तो हम उसको प्लेंटी ऑफ वाटर के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या दे सकते हैं। नाउ इन प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं, और जैसे होम रेमेडीज में नॉट जस्ट दिस मच, ठीक है, कि प्लेंटी ऑफ वाटर देना है। होम रेमेडीज में आप क्या कर सकते हो, और इसके अलावा जैसे उसका एनवायरनमेंट क्लीन रखने के लिए आप जिस जगह पे, जैसे ये येलो फीवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे कि हमने देखा कौन कौन से एरिया थे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका, नहीं साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, है ना। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिक, तो जिन जहाँ पे पता है कि ऐसे इन एरियाज में येलो फीवर बहुत स्प्रेड हो सकता है या होता है, तो हम क्या कर सकते हैं वहां पे कि वहां का एनवायरनमेंट क्लीन रखें, मस्कीटो डेवलप होने ना दें, है ना। मस्कीटो को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो, अगर वेक्टर ही नहीं है, अगर हम वेक्टर को ही किल कर देते हैं, तो फिर क्या होगा कि वो ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि एनी हाउ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वेक्टर, दैट इज मस्कीटो। तो हम उसके अगेंस्ट भी जितना भी हम मलेरिया या इसमें डेंगू में प्रिकॉशंस लेते हैं कि पानी जमा होने ना दें, साफ अपना एनवायरनमेंट साफ रखें, है ना, मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करें, मच्छरदानी का यूज करें, तो ये सारी चीजें भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो दैट विल आल्सो कम अंडर यू नो कि प्रिवेंशन मेजर्स में, जो कि आप इजीली घर में बैठे ले सकते हो। देन इन प्रिवेंशन देयर विल बी वैक्सीनेशन हेल्प्स टू प्रिवेंट येलो फीवर। और जो लोग इस तरह इस एरियाज में रहते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं, और जिन कंट्रीज में ये डिजीज कंडीशन बहुत कॉमनली स्प्रेड होता है, क्योंकि इसका डेथ रेट बहुत ज्यादा है। यू हैव ऑलरेडी सीन 20% to 5% इसका डेथ रेट है, और 20% to 50% वाज द डेथ रेट। तो इसका डेथ रेट बहुत ज्यादा है। अगर सीवियर कंडीशन में ये कन्वर्ट हो जाता है तो डेथ रेट के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। तो इसीलिए क्या जरूरी है कि ऐसे एरियाज में पहले से ही पेशेंट को वैक्सीनेट, मतलब पर्सन को, नॉट पेशेंट, जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसको भी वैक्सीनेट कर दिया जा सके, कर दिया जाए, ताकि वो 35 ईयर्स, फॉर 35 ईयर्स ऑफ एज वो सेफ रहे। यूजिंग इंसेक्ट रेपेलेंट, हम इंसेक्ट रेपेलेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड हम क्या कर सकते हैं, वेयरिंग फुल क्लोथ्स टू रिड्यूस मॉस्किटो बाइट्स, आप पूरे कपड़े पहन सकते हैं। जैसे जो टाइम पीक बाइटिंग टाइम होता है, पीक बाइटिंग टाइम कौन सा होता है मस्कीटो के लिए, शाम का टाइम होता है ना। शाम के टाइम में बहुत ज्यादा मच्छर काटते हैं, तो उस टाइम पे कोशिश करो कि घर के अंदर रहो। और कोई सीजन भी होता है, जैसे दिस इन व्हेन दिस रेनी रेनी सीजन इज कमिंग, तो उस टाइम पे भी मच्छर बहुत काटते हैं। तो हो सके तो उस टाइम पे जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए घर के अंदर रहे। सो एप्लीकेशंस, सॉरी नॉट कॉम्प्लिकेशंस, अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या, व्हाट ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन विच यू कैन फाइंड इन येलो फीवर। तो फर्स्ट विल बी हाई फीवर, ठीक है। पेन इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अपर पार्ट में बहुत ज्यादा पेन कंप्लेन करता है पेशेंट। वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि आपने देखा था हिपैटोमेगैली हो रहा था, है ना। तो जॉन्डिस हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है पेशेंट को। तो ये जो ब्लीडिंग, जॉन्डिस, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ये सब जो है ना, ये सीवियर में जब कन्वर्ट हो जाता है तब है, ठीक है। तो किडनी फेलियर हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है, इवन डेथ कैन आल्सो अकर। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ येलो फीवर।
हेल्थ एजुकेशन क्या हो सकता है येलो फीवर के लिए? सो हाइजीन, फर्स्ट पॉइंट विल बी हाइजीन। जब आप हेल्थ एजुकेशन लिखते हो तो ऐसे ही करके लिखना है, जैसे हाइजीन के लिए आप कुछ पॉइंट्स रखोगे, डाइट के लिए, मेडिकेशन फॉलो अप, ये सब के लिए आपको पॉइंट्स रखने होते हैं। तो फर्स्ट इज हाइजीन, एडवाइज द पेशेंट टू मेंटेन हिज पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। अपना उसका पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना जरूरी है। पेशेंट को हमने या फिर पीपल जो भी उस ऐसे एरिया में जो लोग रहते हैं उनको हमको एडवाइस करना है कि पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन का बहुत अच्छा they have to take care of it. Next is diet. We can advise the patient to take fluid rich and balanced diet. पेशेंट को हम क्या बोल सकते हैं कि आप फ्लूइड रिच डाइट ले और बैलेंस डाइट ले ताकि एनर्जी लेवल मेंटेन रहे पेशेंट की। ठीक है। मेडिकेशन में पेशेंट को यू हैव टू इन्फॉर्म द पेशेंट, उसको एजुकेट करना है कि टाइम टू टाइम मेडिसिन लेना है। जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसको आपने टाइम टू टाइम लेना है। फॉलो अप के लिए वी कैन एडवाइज द पेशेंट टू गो फॉर फॉलो अप ऑन गिवन डेट एंड टाइम। और जिस डेट और जिस टाइम पे आपको फॉलो अप के लिए बोला गया है, यू हैव टू गो एंड फॉलो अप फॉर दैट डे, यू कांट डिले इट। सो समराइजेशन में हम देखते हैं कि येलो फीवर क्या है। येलो फीवर इज एन एक्यूट सिस्टमिक इलनेस कॉज्ड बाय फ्लेवीवायरस। इट इज अ जूनोटिक डिजीज मेनली अफेक्टिंग द monkeys, sorry, and vertebrates. ठीक है। It can be transmitted to human by कुलिसन मॉस्किटो ऑल्सो। ठीक है। इस मॉस्किटो से भी ट्रांसमिट हो सकता है। द स्पेक्ट्रम ऑफ इलनेस may range from asymptomatic illness to acute onset, or sometime it can cause of viral hepatic and fever, viral hepatitis and fever। तो ये क्या है? येलो फीवर इज एन एक्यूट, ये एक एक्यूट सिस्टमिक इलनेस है। ये फ्लेवी वायरस की वजह से होता है। ठीक है। ये जूनोटिक डिजीज कंडीशन है, यानी कि ये वर्टिब्रेट्स में और मंकीज में होते हैं। देन दिस डिजीज कंडीशन कैन बी स्प्रेड थ्रू एबेडी मस्कीटो था, और दूसरा जो मस्कीटो है वो क्या है, वो कौन सा है? क्यूलिसिन मस्कीटो कैन आल्सो स्प्रेड दिस डिजीज कंडीशन, कैन एक्ट एज अ वेक्टर इन दिस डिजीज कंडीशन। ओके। पेशेंट का जो जो इस डिजीज कंडीशन का स्पेक्ट्रम है ना, वो कौन से कहाँ तक रेंज कर सकता है? दैट इज एसिम्प्टोमेटिक। पेशेंट कैन बी एसिम्प्टोमेटिक और एक्यूट ऑनसेट, यहाँ तक रेंज कर सकता है। ठीक है। तो हमने आज अभी जो ये येलो फीवर पढ़ा उसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि व्हाट इज येलो फीवर, व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ येलो फीवर के कौन से पॉजिटिव एजेंट है, व्हाट आर द एरिया दैट आर मोस्टली अफेक्टेड बाय द येलो फीवर। ठीक है। एपिडेमियोलॉजी कहाँ पे है इनकी। ओके। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ येलो फीवर, how can we diagnose the yellow fever, and how can we cure yellow fever. So these were the points which we have discussed in this topic, that is yellow fever. So this was it for your class. So आप मुझे ये बताइए, क्योंकि अभी आपने जितने भी मुझे कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन आप लोगों ने टॉपिक वाइज मुझे दिए थे वो सारे हो गए हैं। तो अभी आगे आप लोगों को क्या बताना है, क्या पढ़ाना है? मैम हम मैसेज कर देंगे। ओके ठीक है, मुझे मैसेज कर देना। यस मैम। ओके देन। कोई डाउट हो, कुछ हो तो पूछ सकते हो मुझसे तुम लोग। एक बार गो थ्रू करो इसके, उसके बाद कोई डाउट अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। ओके मैम। जस्ट गो थ्रू इट, अभी के लिए इसको गो थ्रू करो एक बार, क्विकली रिवाइज करो। वेट मैं स्टार्टिंग से ओपन कर देती हूँ एक बार।
यस। जो मॉस्किटो है वो एक तो एडिस एजिप्टिक मॉस्किटो है। इसका डेथ रेट बहुत हाई है। देखो 2 लाख अगर केसेस है तो उसमें से 30,000 डेथ रेट है, तो आप लगा के चलो 20%, 10-12% से ज्यादा डेथ रेट है। वैसे 20% तक इसका डेथ रेट है। जस्ट गिव मी 1 minute। यस। कोई डाउट है तुम लोगों को? नो मैम। नो मैम। कोई डाउट नहीं है? ओके देन फाइन। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए तुम लोग मुझे टॉपिक्स दे देना प्लीज। ठीक है, जितना भी कुछ कोई टॉपिक अगर रहता होगा तो मुझे बता देना, क्योंकि आई गेस क्लासेस तो होंगी मेरी तुम्हारी क्लास में, है ना? तो फिर ओके देन। ओके मैम, थैंक यू।